ہم 20ویں صدی کی تاریخ کے ان تاریخ ترین اور انتہائی حساس پہلوؤں کا بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں تجزیہ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اس کی شروعات کرتے ہیں. جی ضرور. جو سوال سب سے پہلے ذہن کو الجھاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انتہائی جدید پڑھا لکھا اور تہذیب یافتہ معاشرہ جیسا کہ 20ویں صدی کا جرمن معاشرہ تھا، وہ اچانک اتنی گہری اور ادارتی نفرت کا شکار کیسے ہو گیا؟ مطلب ہٹلر کا یہ نظریہ کہ مبینہ غداروں کا، خاص طور پر یہودیوں کا مکمل صفایا ضروری ہے، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو سکتی جو راتوں رات آسمان سے ٹپک پڑی ہو؟ نہیں، بالکل نہیں. اور تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ کوئی بھی انتہائی نظریہ راتوں رات پروان نہیں چڑھتا. جب ہم ان تاریخی شواہد کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اتنی شدید نفرت کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں ہوتی. اس کی جڑیں کئی صدیوں پر محیط ایک طویل اور اکثر خاموش عمل میں پیوست ہوتی ہیں. صحیح، یعنی یہ ایک دن کا کام نہیں تھا. ہاں، یہ نفرت کی عمارت اچانک نہیں کھڑی ہوئی تھی، بلکہ اس کی بنیادیں مذہب اور معیشت کی ان پیچیدہ اینٹوں سے رکھی گئی تھیں جو صدیوں سے تراشی جا رہی تھیں. 20ویں صدی کے اس تاریخ باب کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت کے پہیے کو تھوڑا نہیں بلکہ بہت پیچھے گھمانا ہوگا. اچھا، اگر ہم ان بنیادوں کی بات کریں تو ہمارے ذرائع میں ایک بہت ہی دلچسپ اور کسی حد تک حیران کن تاریخی حقیقت موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں چرچ صدیوں تک یہ بیان سکھاتا رہا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھانے کی مکمل ذمہ داری یہودیوں پر عائد ہوتی ہے. بالکل. جبکہ آج کی مستند تاریخی اور ایکیڈیمک ریسرچ اس بات کو بالکل واضح کر چکی ہے کہ انہیں دراصل اس وقت کی رومن حکومت نے اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی اور باغیانہ خطرہ سمجھ کر شہید کیا تھا. تو یہاں میرا سوال یہ ہے کہ ایک مکمل طور پر سیاسی مصلحت اور حکومتی فیصلے کو ایک مذہبی اور نسلی الزام میں کیسے اور کیوں تبدیل کر دیا گیا؟ دیکھیں، یہ تاریخ کا وہ موڑ ہے جہاں طاقت اور بنیا کا کھیل شروع ہوتا ہے. جب رومن امپائر نے عیسائیت کو اپنا سرکاری مذہب تسلیم کر لیا تو سیاسی مجبوریوں کے تحت یہ بنیا بدلنا ضروری ہو گیا تھا. اچھا، سیاسی مجبوری؟ تاکہ سلطنت کے اندر یکجہتی پیدا کی جا سکے. لیکن یہ صرف ایک مذہبی الزام تک محدود نہیں رہا. صدیوں تک اس مذہبی خلیج کو ایک ادارتی شکل دی گئی اور پھر اس میں معیشت کا عنصر شامل ہو گیا جس نے اس خلیج کو ایک گہری خائی میں بدل دیا. ذرا رکیے، یہ معیشت والا عنصر مجھے تھوڑا الجھا رہا ہے. مذہبی اختلاف تو سمجھ آتا ہے، لیکن اس کا اس قدر گہری معاشی نفرت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے اور یہی وہ میکانزم ہے جو بعد میں تباہ کن ثابت ہوا. قرون وسطیٰ کے یورپ میں یعنی مڈل ایجز میں چرچ کے قوانین کے تحت عیسائیوں کے لیے سود خوری یا پیسوں کے لین دین پر منافع کمانا سختی سے منع تھا. صحیح ہے، ریلیجس پروہیبیشن تھی. ہاں. دوسری طرف انہی معاشروں میں یہودیوں کو زمین خریدنے، زراعت کرنے یا مختلف پیشوں سے منسلک ہونے کی اجازت نہیں تھی. ان کے پاس زندہ رہنے کے لیے بہت کم راستے بچے تھے. تو مطلب انہیں مارجن پر ڈھکیل دیا گیا تھا. بالکل. کیونکہ ان پر سود کے لین دین کی وہ مذہبی پابندی نہیں تھی جو عیسائیوں پر تھی، اس لیے وہ لامحالہ بینکنگ اور قرض دینے کے پیشے سے منسلک ہونے پر مجبور ہو گئے. یہ ان کی بقا کا مسئلہ تھا. لیکن جب معاشرے میں کوئی معاشی بحران آتا، فصلیں تباہ ہوتی یا حکمران جنگوں کی وجہ سے مقروض ہو جاتے تو قرض دینے والوں کو ولن کے طور پر پیش کرنا سب سے آسان کام تھا. اچھا، تو یہ تشبیہ ذہن میں آتی ہے کہ یہ بالکل ایسا تھا جیسے معاشرے کا آپریٹنگ سسٹم صدیوں پرانے مذہبی اختلافات پر چل رہا ہو، لیکن معاشی تفریق وہ وائرس تھا جس نے اس سسٹم کو ہیک کر لیا. اس نے ایک مجبوری کو ایک خطرناک سٹیریوٹائپ میں بدل دیا، اور پھر جب جدید دور کے سیاست دانوں کو کسی قربانی کے بکرے کی ضرورت پڑی تو یہ ہدف پہلے سے تیار تھا. یہ ایک انتہائی درست تجزیہ ہے اور یہی وہ پس منظر ہے جس نے 20ویں صدی کی تباہی کے لیے زمین ہموار کی. لیکن یہ بکھری ہوئی نفرت اس وقت ایک عالمی خطرے میں بدل گئی جب اس کو باقاعدہ ایک منظم شکل دی گئی، جب اسے ایک تحریری سازش کے طور پر پیش کیا گیا. یہاں معاملہ واقعی بہت سنگین اور دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ذرائع اس نقطے پر بہت زور دیتے ہیں، اور میں بات کر رہی ہوں پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف زایون کی. ہمارے نوٹس میں موجود شواہد اس بات کا حیران کن انکشاف کرتے ہیں کہ یہ دراصل روس کی خفیہ پولیس، جسے اوخرانا کہا جاتا تھا، اس کی جانب سے تیار کردہ ایک مکمل طور پر جعلی دستاویز تھی. جی ہاں، بالکل جعلی. اس دستاویز میں یہ سنسنی خیز دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہودی پوری دنیا کی معیشت، میڈیا اور حکومتوں پر قبضے کی ایک عالمی خفیہ سازش کر رہے ہیں. لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ایک کاغذ کا ٹکڑا جو واضح طور پر من گھڑت تھا، جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی، اس نے دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کو بے وقوف بنا دیا. کیا کسی نے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی؟ یہ سوال انسانی نفسیات کے ایک بہت ہی کمزور پہلو کو بے نقاب کرتا ہے. تاریخی اور ایکیڈیمک ریسرچ سے یہ بات بلا شبہ ثابت ہو چکی ہے کہ پروٹوکالز محض ایک تراشا گیا جھوٹ تھا. یہ اصل میں پرانی فرانسیسی کتابوں سے چرائے گئے اقتباسات کا مجموعہ تھا. پلیجرزم تھی. واقعی صرف کاپی پیسٹ کیا تھا انہوں نے. بالکل. لیکن یہ دستاویز اتنی تیزی سے اس لیے پھیلی کیونکہ جب انسانی ذہن خوف اور بے یقینی کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنی تنقیدی سوچ، اپنی کریٹیکل تھنکنگ کھو دیتا ہے. 19ویں اور 20ویں صدی کا آغاز ایک انتہائی ہنگامہ خیز دور تھا. صنعتی انقلاب، معاشی بحران اور جنگوں کی وجہ سے عام انسان کی زندگی میں بہت بے یقینی تھی. لوگ ان پیچیدہ عالمی مسائل کا ایک آسان اور سنسنی خیز جواب ڈھونڈ رہے تھے. یعنی سچائی کی پیچیدگی کے مقابلے میں جھوٹ کی سادگی زیادہ پرکشش لگ رہی تھی. ہاں، یہی مسئلہ تھا. یہ دستاویز انہیں ایک صاف شفاف ولن فراہم کر رہی تھی. یہ بتا رہی تھی کہ ان کی تمام تکالیف کی وجہ کوئی ایک پوشیدہ طاقت ہے. جب جھوٹ کو منظم طریقے سے اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے اندر موجود خوف کے ساتھ ملا کر پیش کیا جائے تو وہ بہت جلدی حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے. نفسیات میں اسے کنفرمیشن بائس کہتے ہیں. لوگوں کو وہ چیز مل گئی تھی جو ان کے پہلے سے موجود مذہبی اور معاشی تعصبات کو درست ثابت کر رہی تھی.
उफ, ये बात रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि कैसे एक जाली खबर और प्रोपेगेंडा रियायती कवानीन में बदल जाता है, क्योंकि झूठे प्रोपेगेंडे का अगला कदम हमेशा कानून साजी होता है। जब हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखते हैं तो अप्रैल 1933 में जर्मनी में आर्यन पैराग्राफ मुतारिफ कराया गया। इसके तहत यहूदियों को तमाम सरकारी मुलाजमतों से बेदखल कर दिया गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जी, ये पहला कदम था। जब हम 1938 के कवानीन को देखते हैं तो जहन सुन हो जाता है। रियासत ने जबरी तौर पर यहूदी मर्दों के नाम के साथ इजराइल और औरतों के नाम के साथ सारा का इजाफा कर दिया, और फिर वो पीले रंग का डेविड का सितारा जिस पर जूड लिखा होता था, इसे कपड़ों पर पहनना लाजमी करार दे दिया गया। तारीख के इन औराक से ये बात वाज़ेह होती है कि नस्लकुशी का आगाज अचानक किसी गैस चैम्बर से नहीं होता। इसकी शुरुआत तो गली कूचों में इन शनाख्ती बैजेस, कागजात और नामों की तब्दीली से होती है। ये दरअसल आहिस्ता आहिस्ता उबलते पानी के नजरिए यानी बॉइलिंग फ्रॉग इफेक्ट की एक अमली मिसाल है। देखें, आप किसी भी पढ़े लिखे और मुहज्जब माशरे में रातों रात खुलेआम कत्लेआम शुरू नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग बगावत कर देंगे। बिल्कुल। जम तरीकाकार अपनाया जाता है जिससे समाजियात में गैर इंसानियत साजी या डीह्यूमनाइजेशन कहा जाता है। आपको पहले उन्हें मुआशरे में और आम लोगों की नज़रों में एक अलग और ख़तरनाक चीज़ साबित करना होता है। ये जो शनाख्ती बैजेस और नाम की तब्दीली थी, इसका मकसद उन्हें इंसानों के दर्जे से गिराकर महज एक निशान या लेबल तक महदूद करना था। सही, यानी उनकी आइडेंटिटी ही छीन ली गई। हाँ, और जब आप अपने ही पड़ोसी को इंसान के बजाय एक खतरे का निशान समझने लगते हैं तो हमदर्दी खत्म हो जाती है। रियासत कानून का शिकंजा इस कदर सख्त कर देती है कि तशद्दुद की फिजा बिल्कुल तैयार हो जाती है। बस फिर एक बहाने की जरूरत होती है। और वो बहाना, वो चिंगारी नवंबर 1938 में पेरिस में भड़की। हमारे नोट्स के मुताबिक एक 17 साला यहूदी लड़के हर्शल ग्रिन्सपैन ने जर्मन सफारतकार अर्न्स्ट वॉमरात का कत्ल कर दिया। एक इनफरादी फैल, एक लड़के का गुस्से में उठाया गया कदम। लेकिन इसके रद्द अमल में रियासत ने जो किया, उसने जदीद तारीख की सबसे भयानक रात को जन्म दिया। इसके नतीजे में क्रिस्टल नाख्त यानी टूटे हुए शीशों की रात का आगाज हुआ। जी। शाहिद बताते हैं कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर पूरे जर्मनी में 250 इबादतगाहें जला दी गईं, 7,000 दुकानें लूट ली गईं और 30,000 मर्दों को हिरासती कैंपों में भेज दिया गया। मेरा सवाल यह है कि क्या ये वाकई आवाम का बेसख्ता गुस्सा था, जैसा कि रियासत ने दावा किया? एक फर्द के जुर्म को पूरी कम्युनिटी पर कैसे थोप दिया गया? ये अवाम का कोई बेसाख्ता रद्द-ए-अमल नहीं था। तारीखी शवाहिद कतई तौर पर साबित करते हैं कि ये एक मुनज़्ज़म रियासत का मंसूबा था। रियासत ने इस वाक़े को महज एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि इदाराती जुल्म को, जो अब तक सिर्फ कानून की किताबों में था, उसको सड़कों पर खुलेआम तशद्दुद और गुंडागर्दी में बदल दिया जाए। अच्छा, तो पहले से तैयार थे वो लोग? बिल्कुल तैयार थे। क्रिस्टल नाइट्स का असल मकसद सिर्फ अमलाक को नुकसान पहुंचाना नहीं था। ये रियासत की तरफ से अपने ही शहरियों के लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि अब कानून तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगा। हुजूम को खुली छुट्टी दे दी गई थी और पुलिस और फायर ब्रिगेड को हुक्म था कि वो मुदाखलत ना करें जब तक कि गैर यहूदी अमला को खतरा ना हो। ये वो मकाम था जहां से वापसी का रास्ता खत्म हो गया। और यही वो मकाम था जहां से तशद्दुद की ये लहर हॉलोकॉस्ट की शक्ल में अपने खौफनाक तरीन उरूज को पहुंची, जिसमें लाखों जानें गईं। लेकिन यहाँ तारीख का मुताला करते हुए एक और सनसनीखेज और किसी हद तक मायूस कुन मोड़ आता है। वो क्या? देखें, इस वाक़े को गुजरे कई दहाइयां बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी इंटरनेट के दौर में इसके हवाले से बेशुमार झूठ गर्दिश कर रहे हैं और हैरान अंगेज तौर पर पढ़े लिखे लोग उन पर यकीन भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने तहकीक के दौरान देखा कि इंटरनेट पर हिटलर से मंसूब एक बहुत मशहूर इक्तिबास फैला हुआ है। इसमें कहा गया है कि मैंने 80% यहूदियों को खत्म कर दिया और 20% को इसलिए छोड़ा ताकि दुनिया को पता चले कि मैंने उन्हें क्यों मारा। जब हमारे ज़राए ने इसकी बारीकबीनी से जांच की तो ये बात सामने आई कि हिटलर ने ऐसा कोई जुमला कभी नहीं कहा था। दर हकीकत हिटलर का जो फाइनल सोल्यूशन था वो 80% का नहीं, बल्कि यूरोप के 100% यहूदियों के मुकम्मल और कतई खत्मे का मंसूबा था। उसका इरादा किसी को भी जिंदा छोड़ने का नहीं था। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? जब असल तारीख और हिटलर के इरादे इतने ही हौलनाक और वाज़ेह हैं, तो लोग आज मजीद जाली इक़्तिबासात क्यों घड़ते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है और इसका ताल्लुक बराह रास्त इंसानी नफ्सियात से है। अक्सर औक़ात ऐसे जाली इक़्तिबासात इसलिए घड़े जाते हैं ताकि तारीख के किसी जालिम को उसके असल सफ़ाक इरादों से हटाकर एक मुफक्किर या मंतिकी शख्स के तौर पर पेश किया जा सके, यानी उसकी दरिंदगी को जस्टिफाई करने की कोशिश। जी, ये साबित करने की एक लाशऊरी या शऊरी कोशिश की जाती है कि उसके तशद्दुद के पीछे कोई गहरी हिकमत या कोई सबक पोशीदा था, जबकि हकीकत यह है कि फाइनल सोल्यूशन में कोई हिकमत नहीं थी। वो महज एक अंधी, सफाकाना और सनाती पैमाने पर की जाने वाली नस्लकुशी थी। यानी लोग बुराई की खौफनाक हकीकत को तस्लीम करने के बजाय उसे एक ड्रामाई और फिल्मी डायलॉग का रूप दे देते हैं ताकि वो समझने में आसान हो। बिल्कुल, और ये चीज़ हमें बताती है कि जदीद दौर में भी मालूमात को किस बेदर्दी से मसख किया जा सकता है। लोग पेचीदा तारीखी हकायक पढ़ने के बजाय 2 लाइनों के जाली इक़्तिबासात शेयर करना ज्यादा आसान समझते हैं। इस मालूमात के सैलाब के दौर में हकायक की जांच यानी फैक्ट चेकिंग और तनकीदी सूच की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। हकायक की जांच वाकई जरूरी है, खास तौर पर जब हम इस तारीख के अगले बाब में दाखिल होते हैं, क्योंकि तारीख का ये पहिया यूरोप के खंदरात पर नहीं रुका। दूसरी जंग अजीम और होलोकॉस्ट के इस नाकाबिल बयान अलमिये ने आलमी सियासत और तारीख के धारे को एक नया रुख दिया। जब जंग खत्म हुई, होलोकॉस्ट से बच जाने वालों की एक बड़ी तादाद ने हिजरत की और ये पूरा तनाज़ा यूरोप से निकलकर मशरक़ वुस्ता में मुंतकिल हो गया। इसराइल का क़याम अमल में आया, लेकिन इसके साथ ही तारीख ने एक नया और खूनी मोड़ लिया, जहां जुल्म के शिकार होने वाले लोगों की नई रियासत एक नए तनाज़े का मरकज़ बन गई।
जी, और ये बहुत ही हसास मसला बन गया। अगर हम सीधा 1982 के सबरा और शातिला पनागुज़ीन कैंपों के वाक़ये पर आएं तो हमारे नोट्स में जो हक़ाइक़ दर्ज हैं वो इंतहाई दिलखराश हैं। हमारे ज़राए वाज़े करते हैं कि कैंपों के अंदर घुसकर बेगुनाहों का जो कत्लेआम किया गया वो लेबनान की मसीही फालंजिस मिलिशिया ने किया था। लेकिन और यहाँ कहानी एक इंतहाई हसास मोड़ लेती है। एक आज़ाद कमीशन की रिपोर्ट ये दिल दहला देने वाला इंकिशाफ करती है कि इसराइली फ़ौज यानी IDF इस वाक़ये की बिलवास्ता जिम्मेदार थी। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये जंगी तारीख का एक इंतहाई पेचीदा और दर्दनाक बाब है। देखें, देहरा कमीशन, जो कि खुद इजराइल का एक इंक्वायरी कमीशन था, इसकी फाइंडिंग्स बिल्कुल वाज़े हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि अगरचे इजरायली फौजियों ने खुद गोलियां नहीं चलाईं, लेकिन उन्होंने कैंपों का मुकम्मल घेराव कर रखा था। उनके इल्म में था कि मिलिशिया कैंपों में दाखिल हो चुकी है। और जो तफसील मुझे सबसे ज्यादा बेचैन करती है वो रात के उस अंधेरे का मंजर है। ज़राए बताते हैं कि रात के वक्त जब कत्लेआम जारी था तो इसराइली फौज की जानिब से कैंपों के ऊपर रोशनी के गोले यानी फ्लेयर्स फायर किए जा रहे थे। ज़रा इस मंजर को जहन में लाएं। अंधेरा है, कैंपों में खूनी खेल जारी है और बाहर मौजूद फौज आसमान को रोशन कर रही है ताकि मिलिशिया को अपना काम करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। ये सोचकर ही जहन में एक खौफनाक तनाव पैदा होता है। फौज ने बराह रास्त ट्रिगर नहीं दबाया, लेकिन उन्होंने कातिलों के लिए रोशनी का बंदोबस्त किया। इसे हम तारीखी तौर पर किस खाने में रखेंगे? कानूनी और अस्करी इस्तिलाह में इसे बराह रास्त कत्ल यानी डायरेक्ट एक्शन और बिलवास्ता सहूलतकारी यानी इनडायरेक्ट फैसिलिटेशन के दरमियान का फ़र्क कहा जाता है। लेकिन अखलाकी और इंसानी सतह पर यह फ़र्क तकरीबन मिट जाता है। बिल्कुल। जब एक मुनज़्ज़म फ़ौज किसी इलाके का कंट्रोल संभाल ले, इसका घेराव करे और कातिलों को अंधेरे में रोशनी फराहम करे, तो वो इस खूनरेज़ी की अखलाकी जिम्मेदारी से खुद को अलग नहीं कर सकती। इस वाक़े ने पूरी दुनिया और ख़ुद आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। इसने ये साबित किया कि यूरोप की राख से उठने वाला ये तनाज़ा अब एक नई सरज़मीन पर नए अलमिया जन्म दे रहा है। इतनी तवील जंगों, नकल मकानी और अनगिनत इंसानी जानों के ज़या की तारीख पढ़ने के बाद एक आम कारी यही सोचेगा कि कम से कम यहूदी कम्युनिटी इस नई रियासत के क़याम और इसकी बका के लिए पूरी तरह एक पेज पर होगी। लेकिन हमारे नोट्स में एक ऐसी हैरत अंगेज मालूमात मौजूद है जो इंसान को बिल्कुल दंग कर देती है। ये एक ऐसा सच है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी तफसील से नहीं बताया जाता। जी, इस पर बहुत कम बात होती है। हकीकत में खुद यहूदियों के अंदर एक इंतहाई गहरा और बुनियादी नजरियाती तसादुम मौजूद है। एक तरफ तो वो सह्यूनी यानी ज़ायनिस्ट सोच है जो रियासत के क़याम और इसकी ताकत को ज़रूरी समझती है, लेकिन दूसरी तरफ, और ये वाकई हैरानकुन है, यहूदियों का ही एक ऐसा कदामत पसंद गिरोह मौजूद है जिसे नचुरई करता कहा जाता है, जो रियासत इसराइल का सख्त तरीन मुखालिफ है। जी हाँ, और इनका नुक्ता नज़र पूरी सियासी बहस के ज़ाविये को सिरे से उलट देता है। नचुराई करता एक ऐसा गिरोह है जो तोरा की तालीमात पर इंतहाई सख्ती से अमल करता है। हम अक्सर इस तनाज़े को सिर्फ एक ज़मीन के झगड़े के तौर पर देखते हैं, लेकिन इनके नज़दीक ये एक खौलिस्तान मजहबी और इलाहियाती मसला है। इनका बुनियादी अकीदा यह है कि यहूदियों को दी गई जिलावतनी दरअसल अल्लाह का एक फैसला या एक सज़ा थी। इनके नज़दीक किसी भी इंसानी ताकत, सियासी तहरीक या अस्करी जोर के जरिए अपनी एक अलग रियासत कायम करना अल्लाह की सरीह नाफरमानी है। अच्छा, तो उनका मानना है कि जो मौजूदा रियासत बनाई गई है वो मजहब के खिलाफ है। बिल्कुल, उनका अकीदा है कि यहूदी सिर्फ उस वक्त अपनी रियासत बना सकेंगे जब मसीहा आएंगे। इससे पहले जोर जबरदस्ती अपना वतन बनाने का मतलब दुनिया पर एक बड़े अजाब को दावत देना है। ये लोग सिर्फ सियासी या इंसानी हुकूक की बुनियाद पर रियासत इसराइल के मुखालिफ नहीं है, बल्कि वो अपनी मजहबी किताब की बुनियाद पर इसके वजूद को ही गैर कानूनी मानते हैं। ये बात वाकई जहन के दरीचे खोल देती है कि किस तरह एक ही कम्युनिटी के अंदर इतना शदीद और बुनियादी तजाद पाया जाता है। दुनिया अक्सर इन पेचीदा मामलात को सिर्फ एक ही रंग में, एक ब्लैक एंड व्हाइट एनेक्स से देखती है, लेकिन यहाँ तो एक तरफ वो लोग हैं जो अपने वजूद और बका के लिए एक अस्करी रियासत को नागुज़ीर समझते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ऐन इसी रियासत को अपने ही मजहब की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी करार देते हैं। यही तो तारीख का अलमिया है। जी, ये इस बात का सबूत है कि तारीख, अकायद और सियासत को कभी भी आसान और सीधे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। और यही आज के इस तफसीली जायजे का सबसे बड़ा सबक है। हमने देखा कि किस तरह सदियों पुराने मजहबी इख्तिलाफात को मुआशी तफरीक का वायरस लगा, किस तरह एक रूसी खुफिया पुलिस ने प्रोटोकॉल जैसी जाली दस्तावेज बनाकर इस तासुब को एक आलमी साजिश और एक मुनज़्ज़म बानिए का रंग दिया, किस तरह एक तहजीब याफ्ता जर्मन मुआशरे ने कागजात और बैजेस के जरिए अपने ही शहरियों की गैर इंसानियत साजी की, जो आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टल नाफ्ट और फिर हॉलोकॉस्ट जैसी सनाती नस्लकुशी तक पहुंची। बिल्कुल, और किस तरह हॉलोकास्ट के बाद वो तनाज़ा जोग्राफियाई हुदूद पार करके मशरक़ वुस्ता मुंतकिल हुआ, जहां सबरा और शतीला जैसे वाक़यात ने तारीख के सीने पर नए जख्म लगाए। हमने ये भी समझा कि आज का दौर भी इस प्रोपेगेंडा से महफूज नहीं है, और इंटरनेट पर जाली इक़्तिबासात के जरिए तारीख को मसख करने का अमल आज भी जारी है। और सबसे आखिर में हमने नेटुरे कार्ता के नजरिए से जाना कि किस तरह खुद इस कम्युनिटी के अंदर एक बुनियादी नजरियाती जंग जारी है। इस तमाम गुफ्तगू से एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जब बेबुनियाद नफरत को मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा का हथियार मिल जाए तो वो इंसानियत से वो कुछ करवा सकती है जिसका तसव्वुर भी महाल है। सही कहा आपने। और यही वो मकाम है जहां हक़ायक़ की खोज और तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग की अहमियत सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है। मालूमात को परखे बगैर कबूल कर लेना और पेचीदा मसाइल के लिए आसान झूठे जवाब ढूंढना ही तारीख के इन तमाम आलमियों की सबसे बड़ी वजह रहा है।
بالکل، اور اس تمام تاریخی سفر نے میرے ذہن میں ایک انتہائی سنسنی خیز اور فکر انگیز سوال پیدا کر دیا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، اگر 20ویں صدی کے آغاز میں ایک پرانے ٹائپ رائٹر پر لکھی گئی ایک سستی اور جعلی دستاویز یعنی وہ پروٹوکالز عالمی تاریخ کا پورا رخ موڑ سکتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں کو ہیک کر سکتی ہے اور لاکھوں انسانوں کی جانیں لے سکتی ہے، تو آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں جہاں ڈیپ فیک ویڈیوز موجود ہیں، جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کوئی بھی چہرہ اور کوئی بھی آواز بنائی جا سکتی ہے، اور جہاں الگورتھم لمحوں میں جھوٹ کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے، اس وقت کون سی ایسی جھوٹی خبر، کون سی ایسی منظم جعلی سازش ہے جو خاموشی سے 22ویں صدی کی تاریخ لکھ رہی ہے اور جس سے ہم سب اس وقت مکمل طور پر بے خبر ہیں؟ سوچیں ذرا۔